असी भिखारी तू है राजा, असी गरीब तू गरीब नवाजा। असी भिखारी तू है राजा, असी गरीब तू गरीब नवाजा। सहबा नजर मेहर दी पाजा, ला दे भाग उम्मीदां नूं मेरे बाबा जी। चरनां च जोड़ लो गरीबां बाबा नंद सिंह जी। चरनां च जोड़ लो गरीबां नूं। असी भिखारी तू है राजा, असी गरीब तू गरीब नवाजा। असी भिखारी तू है राजा, असी गरीब तू गरीब नवाजा। सहबा नजर मेहर दी पाजा, सहबा नजर मेहर दी पाजा। ला दे भाग उम्मीदां मेरे बाबा जी। चरनां च जोड़ लो गरीबां नूं मेरे बाबा जी। चरनां च जोड़ लो गरीबां नूं। तेरे प्रेम दी तकड़ी विच कदे साडी मिणती हो जावे। महाराज तुहाडी नज़र विच आ जी, तुहाडे प्रेम दे पात्र बन जी। तेरे प्रेम दी तकड़ी विच कदे साडी मिणती हो जावे। थोड़ी चरण धूड़ विच किधरे साडी गिणती हो जावे। तेरे प्रेम दी तकड़ी विच किते साडी मिणती हो जावे। थोड़ी चरण धूड़ विच किधरे साडी गिणती हो जावे। एहो साडी मंग दातिया लगी जावे लंग दात। एहो साडी मंग दातिया लगी जावे लंग दात। सदा रटिया रंग दातिया, सदा रटिया रंग दातिया। दे दे माणन चीजां नूं मेरे बाबा जी। चरनां च जोड़ लो गरीबां नूं बाबा नंद सिंह जी। चरनां च जोड़ लो गरीबां नूं। रूबी होवे गीत मेरे। ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ। ਭੰਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਸਿਰਫ ਬਾਊ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਆਰਤੀ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰਾ ਵਰਡ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦਮਾਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਜੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਭੰਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਏ 11 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭੰਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 12ਵਾਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਦਾਨਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਭਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ चांद इतना गुरूर मत कर, मैंने भी एक चांद देखा है, अरे तुझ में तो दाग है, मैंने बेदाग देखा है। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਬਰੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਵੱਲੋਂ 12ਵਾਂ ਟਰੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਥਾਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਮੱਗੋ ਤੇ ਬੀਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੱਗੋ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ क्योंकि इन्हों का सारे पर्सनैलिटी और पधारे और सभी भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हुआ एक विशेष तौर पर इवेंट ये है कि अपने संची जी सिंगला साहब जी के बर्थडे पर ये हैप्पीएस्ट इवेंट जो मनाया जाता है। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਚੋਪੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਕਲਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਵਪਾਰਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਜਗਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ 12ਵਾਂ ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰਨ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 12ਵਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪਾਂ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ ਰਹੇ, ਖਰਾਬ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। तो इंद्रजीत सिंह मंगो ਨੂੰ कोई भी बंदा मंडी परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, पिता तुल्य, गुरु तुल्य, पंजाब केसरी, जगबानी, हिंद समाचार, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी, जगबानी टीवी के प्रधान संपादक श्री विजय कुमार चोपड़ा जी, मंच पर सुशोभित हरेंद्र सिंह भामड़ी जी, नरेश सिंगला जी, अशोक मेहता जी, सुरेंद्र जुनेजा जी, संचित सिंगला जी जिनका आज जन्मदिन भी है, जोगिंदर सिंह मैनी जी, इकबाल सिंह अरनेजा जी, अन्य महानुभाव नेतागण, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि, पार्षद, पूर्व पार्षद, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं गुरु महाराज की इस नगरी में गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करने के बाद आप सबका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं, और विशेष रूप से परमजीत कौर मग्गो जी और इंद्रजीत मग्गो जी का, जिनकी प्रेरणा से और आप सबके सहयोग से ये 12वां ट्रक राहत सामग्री का आज आदरणीय बाबू जी को भेंट किया जा रहा है। निरंतर किसी अभियान के साथ जुड़े रहना आसान नहीं होता। अगर हम बाबूजी की बात करें कि वो निरंतर ये अभियान चला रहे हैं, 734 ट्रक अब तक बढ़ चुके हैं, और इसी हफ्ते 3 ट्रक और बढ़ जाएंगे, जिसमें से एक आपका भी है। तो बाबूजी अगर इस अभियान को चला रहे हैं तो बाबूजी बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन अगर इंद्रजीत मग्गो, परमजीत कौर मग्गो ये लगातार इस काम को करते हैं, तो मैं समझता हूं कि बाबूजी से भी ज्यादा शाबाश इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि इनका सामर्थ्य बेशक कम हो, लेकिन इनका जज्बा बहुत बड़ा है। अभी बताया इंद्रजीत जी ने कि थोड़े दिन पहले ही कनाडा से आए, और आते ही कहा कि ट्रक जाएगा। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि बाबूजी केवल रविवार को जाते हैं, संडे को जाते हैं। आज अगर वर्किंग डे पे आए तो ये केवल इंद्रजीत मग्गो और संचित सिंगला की वजह से आए, क्योंकि ये लोग सेवा का काम कर रहे हैं। कितना बड़ा काम है अखबार का, आप सब जानते हैं। उसे छोड़ के आ जाना, ये इनकी मोहब्बत और इनकी सेवा का जो जज्बा है, उसकी वजह से आज पहुंच गया है। मैं
छोटी सी बात आप लोगों के साथ जरूर करना चाहता हूँ। कई बार लोग प्रश्न कर देते हैं, शायद मग्गों से भी करते हो, कि ये सामान इतनी दूर वहां क्यों भेजते हैं आप? यहाँ भी बहुत से गरीब लोग होंगे, गोविंदगढ़ के में भी होंगे, जालंधर में भी है, लुधियाना में भी है, पूरे पंजाब में बहुत जरूरतमंद लोग हैं। लोग सवाल करते हैं कि इनको यहाँ क्यों नहीं बांट देते, आप वहां क्यों लेके जाते हो? तो मैं उस प्रश्न का आपको भी उत्तर देना चाहता हूँ। हो सकता है आपके मन में भी कभी ये प्रश्न उठे, हो सकता है आपको कोई प्रश्न करे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सामान गरीबों के लिए नहीं जाता, ये सामान जरूरतमंद लोगों के लिए नहीं जाता, ये सामान जाता है उन बहादुर देशभक्तों के लिए जिनके पास धन भी नहीं है, आय का साधन भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, जिनके पास घर टूटे पड़े हैं पाकिस्तान की गोलियों से, जिनके गांव में, हर गांव में 4-4, 5-5 ऐसी बहनें विधवा हैं जिनके पतियों को पाकिस्तान की गोलीबारी ने या उग्रवादियों ने शहीद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो लोग वहीं रहकर देश की सेवा करते हैं, धरती मां के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। ये उन लोगों के लिए है। आप कभी कभी पढ़ते होंगे अखबार में कि एक सुरंग का पता लगा जिससे उग्रवादी पाकिस्तान में आए थे या आ सकते थे, या सुरंग बन रही थी। ये सूचना कौन देता है बीएसएफ को? ये वो लोग देते हैं जिनके लिए ये सामान जाता है, वरना बीएसएफ को पता नहीं चले। आप पढ़ते हैं करोड़ों की हेरोइन पकड़ी गई, ड्रोन आया, मार गिराया बीएसएफ ने, आर्मी ने, उसकी सूचना कौन देता है? ये वो बहादुर लोग देते हैं जिनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए। वो ऐसे हालात में रहते हैं, उनके गांव में स्कूल है लेकिन अध्यापक नहीं है। जिस अध्यापक की वहां पोस्टिंग होती है वो बदली करा के चला जाता है, वहां से बदली नहीं होती तो छुट्टी लेकर चला जाता है। छोटी छोटी डिस्पेंसरियां हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। एक ही क्लास 4 है, वही सफाई वाला है, वही डॉक्टर है, वही कंपाउंडर है, वही नर्स है, वही फार्मासिस्ट है, वही सब कुछ है। ऐसे लोग इन हालात में रह के भी छोड़ के भागते नहीं वहां से। और जब गोलीबारी होती है, अक्सर गोलीबारी कब होती है? अब पिछला इतिहास निकाल के देख लेना। जब फसलें पक जाती हैं तब पाकिस्तान गोलीबारी करता है और वो बॉर्डर से लोगों को 5-5 किलोमीटर पीछे भागना पड़ता है, जाके रुकना पड़ता है कैंपों में। उनकी फसलें सड़ जाती हैं, वो काट नहीं सकते, या पशु खा जाते हैं जंगली, या पाकिस्तान के लोग वहां से काट के लेकर चले जाते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग वहां से जाते नहीं कि हम यहाँ से निकल जाए, मंडी गोविंदगढ़ जाके लेबर करके काम करके अपना काम कर चला लेंगे, लुधियाना चले जाएं, जालंधर चले जाएं। नहीं, वहीं रहते हैं। और जब कभी गोलीबारी होती है, अब बंकर बना दिए हैं सरकार ने, वो लोग अब बच जाते हैं, इसलिए अब आपने क्यों उनके शहीद होने की खबरें कम आती हैं। लेकिन पहली गोली जब चलती है, पहला बम जब गिरता है, कोई ना कोई मारा जाता है वहां पर। लेकिन फिर भी वो लोग बंकरों में चले जाते हैं, लेकिन उनके पशु नहीं बचते, पशु बंकरों में नहीं जाते। जिन पशुओं को पालते हैं वो दूध बेच के जिनसे गुजारा करते हैं, उनके पशु मारे जाते हैं गोलीबारी में। 1 घंटे के लिए रहना मुश्किल होता है वहां पर। एक बार हमारी मौजूदगी में गोलीबारी शुरू हो गई, हम लोग चले गए बंकरों में, लेकिन इतना धुआं था, सब काला काला हो गया और इतनी आवाज थी गोलीबारी की कि कान फटते थे और डर अलग था हमारे मन के अंदर। लेकिन वो तो ऐसा रोज देखते हैं मंजर, उन लोगों के लिए ये सामान जाता है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मग्गो परिवार का कि ये लोग हर बार ट्रक खुद बांटने के लिए जाते हैं। इसमें आप और लोगों का भी बहुत हिस्सा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 24 तारीख को हमने ये ट्रक बांटना है। बिल्कुल बॉर्डर पर अब्दुलिया गांव है एक, जहां पर 3 तरफ पाकिस्तान है। आप अगर जाना चाहो चलिए, देखिए वहां पर हालात कैसे हैं। जिस गांव में हमने ये ट्रक बांटना है, अब्दुलिया नाम है उसका गांव का,
और उसके तीन तरफ पाकिस्तान है। इस तरह से गांव है, इधर भी पाकिस्तान, इधर भी, इधर भी, इधर भी। जब कभी गोलीबारी होती है, तीन तरफ से गोलीबारी होती है उनके गांव के अंदर। ऐसे लोगों के लिए ये सामान जाता है, गरीबों के लिए नहीं जाता, बहादुर लोगों के लिए जाता है, देशभक्तों के लिए जाता है। जिसने भी इसमें हिस्सा डाला है उनका धन्यवाद। जिन्होंने इस बार नहीं डाला वो अगली बार जरूर डाले, मेरा आह्वान है, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि दान सुपात्र को देना चाहिए। कुपात्र को दिया गया दान हानि पहुंचाता है। अगर आप ऐसे आदमी को दान दे देते हैं जो जाके शराब पी के अपनी बीवी या बच्चों को गालियां निकालते हैं, पाप आपको लगेगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे देते हैं जो चक्कू, पिस्तौल, हथियार खरीद के किसी को लूट लेता है, तो उसका पाप भी आपको लगेगा। ये सुपात्र लोगों को दान देने का सिलसिला जो बाबूजी ने शुरू किया है, इसके साथ जुड़िए। 24 तारीख को आइए मग्गो साहब के साथ, हम ये बांटने चलेंगे। आप भी देखिए कि वहाँ हालात कैसे हैं, वहाँ पर लोग रहते कैसे हैं। आप सबका बहुत नरेश सिंगला जी, बेटी परमजीत कौर मग्गो, अशोक मेहता जी, सुरेंद्र जुनेजा जी, इंद्रजीत मग्गो, और आज जिन्होंने जन्मदिन है संचित सिंगला जी, जोगिंदर सिंह मैनी जी, इकबाल सिंह नेजा जी, इतने आए भैनों भराओं तो बच्चों, सब कुछ दसिया जा चुका है। जिथे तक मग्गो परिवार का तलक है, तो पाकिस्तानों आए सी, अपने घर लै गए जो बने। इन्होंने पिता जी भी लैलपुर के सी, मेरा जन्म भी लैलपुर का ही सी। तो चलो कुछ दिनों बाद चले गए और उन्होंने क्या कि सब करना चाहिए सेवा का काम। राशन शुरू कराया पहला, तो लगातार राशन मग्गो दे रहा, परिवार दे रहा है। और उस तो बाद उन्होंने देखा कि ट्रक जाते हैं, कहना जी ट्रक हमें नहीं करना है, तो इन्हें पहल की। पर आज बार-बार ट्रक जा रहे हैं। मैं थोड़े सबका शुक्रिया अदा करता। पंजाब की राजधानी तो लुधियाना है, लेकिन पैसा इतों ज़्यादा कमाते हो तुम। लोहे का सब तो बड़ा है, तुम जरा सहयोग दे रहे हो वो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक दफ़ा भी नहीं गया, क्यों? इसलिए कि कोई हमें कहेगा जी कि आप जानते हैं माल साडा है, तो कोई इन्होंने अवार्ड लेना। तो 500 ट्रक JB सिंह ने बढ़िया, तो बाकी दे बरिंदर शर्मा जी ने बढ़े। इन्होंने एक फर्क पाया कि जो BSF CRP को नाल दिता है, क्योंकि उत्थे ड्यूटियाँ लगी हैं, सारा जगह बॉर्डर से इतने तार बाड़ लगी है। पहला तार बाड़ नहीं सी, तो बड़ा इधर उधर बहुत ज़्यादा गड़बड़ सी। तो तार बाड़ भी अपना हिस्सा सी लगवान, तो उससे के हालात दसे दोनों इन्होंने। तो हूँ असी CRPF BSF का सहयोग लेने, क्योंकि राती दिन की ड्यूटी लगी होती है, तार बाड़ के नाल राती ड्यूटी दो, वो कोई तमिलनाडु का, कोई केरल का, कोई किसी का, वो ड्यूटी नहीं देते। वो आए ने अपने वोटी ना गल करते हैं, बच्चियों ना गल करना शुरू कर दें, मोबाइल अफसर गए तो गल्लां बातां अपने घर कर दिल फिर सो जाते। ये जोड़े लोग ने उत्थे रहिंदे ने, जिन्होंने नाल बॉर्डर के घर में यह इतला देंदे ने सारी। और हुण एक अफसर साडा BSF का चला गया राजस्थान, उन्हें एडा लंबा खत लिखा कि मैं तुहानूं मिलिया तो नहीं, लेकिन मेरा तुसीं राह समझिए राजस्थान के बॉर्डर से चाहिए। तो कहगा कि क्योंकि ऐसे आदमी है नहीं जोड़े जिन्होंने सब तो पहला पता लगता है। तो मैं समझता कि तुम सारी गल एक्सप्लेन की है, ये जिन्ना हिस्सा हमारे थोड़ा जा और बच जाए, लेकिन जाओ जरूर। क्यों लोग कहते मैं क्या इस करके कहना कि तुम यह ना समझो कि बॉर्डर से बिक गया समान। असली गल है नहीं, कहता मैं यही हाँ, ताकि तुम तसली हो समान पाई लग गया। लेकिन होता पे है कि जितना जाता है बंडन, तो उत्थे अनाउंस करके आता या वायदा करता कि मैं दाऊँगा।
मागो फरवरी गया, इसे करके मागो लगा। तुम जाओगे देखोगे कि वाकई वो थोड़ी सेवा कर रहे हैं, थोड़ी सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। असं अज इतने बैठे हाँ उन्होंने कर पंजाब एडा वड्डा सी, पेशावर तो लैके दिल्ली तक अद्धा रह गया। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਊ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਹਿਮਾਚਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਬਾਰਡਰ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ, 90% ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉਹ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि दसौन वो मुश्किल है डेली 10वां हिस्सा, लेकिन हम जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट ने CSR की कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2%, जे तुसी नहीं दिंदे वो गवर्नमेंट ने आप रखा जानी होगी। इस करके वो 2% हिस्सा दे जाओ, हम तो नहीं जाता जब तक मुल्क खड़ा नहीं मिला। गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया कश्मीर, लेकिन रोज़ देखो तुसी बंदे मारे। तो यह काम हले चालू रहना है 10-15 साल, जल्दी ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छी गल है। लेकिन पाकिस्तान का जो बच्चा बैठा है वो यहो जी शरारत करके घुमाता पाया, कभी इधर हीरोइन चुटती ₹1,00,000 की तो ज़्यादा पैसे चलेंगे वगैरह वगैरह, फेक करेंसी सुटती पैसे ले ले। तो ये सहयोग जिन्ना दोगे तो साढ़े अपने CSR जो दो, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछ लो कि 2% जो है बजाय कि गवर्नमेंट आ जाए इधर खर्च कर। धन्यवाद जय।